કરે છે. તો મંશૂરે પોતાના અંદર જે રૂહાની ઈશ્ક છે કે મોમિન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે, આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખે, એક દિલ થવું જોઈએ. તમે ને અમે એક છો. પડદો ખુલ્યો નથી એના પહેલા પીરોએ ફરમાવ્યું કે હમ તુમ સાહિયા એક હૈ, હમસુ પડદા ખોલ. તો પડદો ખુલ્યો નથી એના પહેલા પણ આ ઈમાન રાખ્યું કે મૌલા તું ને હું એક જ છીએ. અને એ ચીજનો, એ ઈમાનનો વાસ્તો આપીને કીધું કે પડદો ખોલી દે. અને મંશૂરે જ્યારે આ અનલ હકનો દાવો કર્યો તો જે લોકો જાહેર પરસ હતા શરીયતી, એ લોકો આ ચીજને સમજી ના શક્યા. જે સૂરે ઇખલાસ છે કે અલ્લાહ એક જ છે, એ ચીજને સમજી ના શક્યા. એવો અલ્લાહ જે પોતે કોઈનાથી પેદા નથી થયો, ના તેનાથી કોઈ પેદા નથી થયો. મંસૂરને સવાલ થયો પછી મારું વજૂદ શું છે? તો એનાથી આ સમજથી એનું દિલ પાક અને સાફ થયું અને રૂહાની ઈશ્કથી ભરપૂર થઈ ગયું. મુર્તદ અને કાફર થઈ ગયો છે વગેરે વગેરે ચર્ચા થવા લાગી. અને મંશૂર પર ઇલ્ઝામ લાગ્યા કે કાફર થઈ ગયો છે, મુલહિદ થઈ ગયો છે, મુર્તદ થઈ ગયો છે. તો શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હજુ આપણી પાસે સમય છે, 11:16 થઈ છે. આપણે આગળ કન્ટિન્યુ રાખીએ થોડું, 14 મિનિટ જેવું, અને પછી આપણે 25 મિનિટ, આપણે 20-25 મિનિટ આપણી પાસે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રહેશે. અને છેલ્લે દુઆ આપીને આપણે એ લંબી જાલીસ પૂરી કરીશું. તો 13 મિનિટ આપણે હજુ ચાલુ રાખીએ, અને આજે ઇન્શાલ્લાહ ક્વેશ્ચન આન્સરનો સેશન થોડો વધારે રહેશે. આલિમોએ મંશૂરને કતલ પર કમર કસી. તો જે લોકો કહેવાતા આલિમ હતા શરીયતો, એ લોકોએ જ મંશૂરને કતલ કરવા માટે પેલું કર્યું. जिनको था इखलास उसकी जात से, मना वो करने लगे इस बात से, खुश नहीं मंसूर ये तेरी अदा, खलक को दुश्मन तू न अपना बना, वरना है जो तबा शराए मतीन, कत्ल पर आमदा होगे बिल यकीन, बस के बहरे इश्क में वो गर्क था, आशना था कब किसकी पंद का. મંશૂર પ્રત્યે જેમને પ્રેમ ભાવ હતો તેઓ તેને વાતથી મના કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, એ મંશૂર તારો આ જોશ ઓછો કર અને દુનિયાના લોકોને તારા દુશ્મન બનાવ નહીં. જે લોકો આગળ આવશે કે મંશૂરના જે ગુરુ હતા અને એમની સાથે જે શિષ્યો હતા, જે સાથે અભ્યાસ કરતા હતા, તો જે લોકોને મંશૂર માટે થોડી ઘણી મોહબ્બત હતી, પણ મંશૂરના દરજ્જા સુધી નહોતા પહોંચ્યા. એમને રૂહાનીનો જલવો એમના હૃદયના અંદર પેદા નહોતો થયો. એ સાચી હકીકત, જે રૂહાની ઇલ્મ, જે સાચી સનાકત છે હાજર ઇમામની, એ ત્યાં સુધી નહોતા પહોંચ્યા. પણ મંશૂર માટે ક્યાંય ને ક્યાંય એમને મોહબ્બત હતી. એ લોકો મંશૂરને સલાહ આપવા લાગ્યા કે આ વાતની તું અનલહક કે છે એને મના કરવા લાગ્યા, તું આ રીતે ના બોલ અને તારો આ જે જોશ છે એનો ઓછો કરી દે, દુનિયાના લોકોને તું તારા દુશ્મન ના બનાવ, એવી મંશૂરને લોકો સલાહ આપવા લાગ્યા. જે લોકો જાહેરી શરાના પાબંદ છે તેઓ તને મારી નાખવા તૈયાર થશે, પરંતુ મંશૂર ઇશ્કે ઇલાહીના મહાસાગરમાં ડૂબેલો હતો. એ ક્યારે કોઈને શિખામણ માને તેમ હતો. તે ઈશ્કના મદિરામાં નશામાં ચૂર હતો. તો જ્યારે આ મંશૂરની હાલત થઈ તો મંશૂરના જે નજદીક કરીબીઓ હતા એના માટે થોડી ઘણી મોહબ્બત રાખતા હતા. એ લોકો મંશૂરને સલાહ આપવા લેશે કે તું આ રીતે ના કર, તું પોતાને લોકોનો દુશ્મન બનાવી રહ્યો છે. જે લોકો જાહેરી શરીયતો છે એ લોકો તારા દુશ્મન થઈ જશે, તારા પર જુલમ કરશે, તને મારી નાખશે. પણ મંશૂર નો ઇશ્કે ઇલાહી એમ ઇશ્કે ઇલાહીના મહાસાગરના અંદર ડૂબેલો હતો અને કોઈની શિખામણ માને એમ નહોતો, અને ઈશ્કના મસ્તીના અંદર મસ્ત હતો. જે મોલાએ ફરમાય, તમે તમારા હાજર ઇમામ પ્રત્યે ઈશ્ક રાખો, તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ જ નથી. એવું ઈશ્ક રાખો કે ઈશ્મા ને ઈશ્મા જિંદગી ખલાસ થઈ જાય. जो बज़ाहिर थे अकायत में दुरुस्त, कत्ल पर बांधी कमर उन सब ने चुस्त, आलिमों से जाके इस्तफाता किया, हक में तुम मंसूर के कहते हो क्या. 370 थे वहां आलिम जलील, मिलके सबने की बाहम में कालो किल, हाइये के मंसूर को क्या हो गया, दिन हक को छोड़कर काफर हुआ. જે લોકો જાહેરી માન્યતા ધરાવતા હતા તેઓ તમામે મંસૂરને કતલ કરાવવા પર ચુસ્ત કમર બાંધી અને આલિમોથી આ બાબતની મંત્રણા કરી. તો જે લોકો શરીયતી જાહેરી ખ્યાલાત વાળા હતા એ લોકોએ મંશૂરની હાલત જોઈને નક્કી કર્યું, હવે આપણે મંશૂરને કતલ કરી દઈએ, અને એના માટે આપણે આલિમોને, કહેવાતા આલિમોને ભેગા કરીએ અને એમના સાથે મંત્રણા કરીએ, સલાહ મશવરો કરીએ. અહલે જાહેરના આલિમોની સંખ્યા પણ 370 જેટલી હતી. એ આલિમોથી લોકોએ ચર્ચા વિચારણા કરી કે મંશૂરના માટે શું કરવું. હા, એ મંશૂરને શું થઈ ગયું. તો 370 કહેવાય છે કે એ સમયે જે આલિમો હતા શરીયતી જાહેરી, એ લોકોને ભેગા કરવામાં આવ્યા
અને આ લોકો ચર્ચા વિચારણા કરી કે આ મંસૂરને શું થઈ ગયું છે, હવે મંસૂરનું શું કરવું? સત્ય ધર્મ મૂકીને કાફર થઈ ગયો અને ખુદાઈ દાવો કરવા લાગ્યો કે એને સાચો ધર્મ મૂકીને કાફર થઈ ગયો છે અને ખુદાનો દાવો કરે છે. તો જે જાહેરી અને શરીયત પરસ્તા એ લોકો ના સમજી શક્યા મંસૂરનો રૂહાની ઈશ્કનો જલવો અને મંસૂરને કાફર અને મુલ્હિદ કહેવા લાગ્યા. घर न इस हरकत से वो बाज आएगा, बेशक अपनी जान से वो जाएगा, ये तो बाहम करके सब ने मशवरा, हाल को जो कुछ था खलीफा से कहा, बाद इसके फिर कहा ए इतले मास, है अगर कुछ शरा का हजरत को पास, कत्ल में उसके न कुछ ताखिर करे, शराता कायम रहे ए दादगार. એમણે નક્કી કર્યું કે મંસૂર પોતાની હરકતોથી બાજ નહીં આવે તો બેશક તે પોતાની જાનથી જશે. એમ નિર્ણય કરીને તમામ બની અબ્બાસા ખલીફ અલ મુક્તદર બિન મુઅત્ફદ જે ઈસવીસન 295 થી ઈસવીસન 320 સુધી રાજગાદી પર હતો, તેની પાસે જે અરજ કરી કે મંસૂર શરાની હદ વટાવીને ખુદાઈ દાવો કરે છે વગેરે હકીકત કહી સંભળાવીને કહ્યું એના કતલમાં દેર થાય નહીં, તાત્કાલિક કતલ કરવો જોઈએ જેથી શરીયતના અહેકામોનું રક્ષણ થાય એવી અમારી ઈચ્છા છે. તો જ્યારે મંસૂરના અંદર આ રૂહાનીશનો જલવો થયો અને લોકો એને સમજી ના શક્યા અને એને જાનથી મારી નાખવાનો નક્કી કર્યું, કહેવાતા આલિમો શરીયતી જાહેરી ખ્યાલવાળા હોય, એ સમયે જે અબ્બાસી ખલીફા હતો, ખલીફ અલ મુક્તદર બિન મુઅત્ફદ, એની પાસે ગયા અને એમને આ લોકો આલિમોએ અરજ કરી કે મંસૂરને એ શરીયત અને જાહેરની હદ વટાવી ચૂક્યો છે અને આ રીતે અનલ હક બોલે છે, એને કતલ કરવો જોઈએ જેથી શરીયત અને જાહેરી અહેકામોનું રક્ષણ થાય. बात ये सुनकर खलीफा चुप रहा, आलिमों से कुछ नबा शेख में कहा, क्योंकि था इस रमज में से वो आसना, इसमें दिल में इंस था मंशूर का, करके अपने दिल में खोजो फिक्र गौर, कैद में मंसूर को भेजा फिर फोर. એ લોકોની વાતને ખલીફાએ સાંભળી અને ચૂપ રહ્યો. મંસૂર માટે એક શબ્દ પણ એ બોલ્યો નહીં. ખુદ ખલીફા પણ એ રાજનો જાણનાર હતો, પરંતુ મંસૂર સાથે તેને અદાવત હતી, તેથી મંસૂરને કેદખાનામાં મોકલી આપ્યો. તો એમ કહેવાય છે કે એ સમયે જે અબ્બાસી ખલીફાના પાસે આ શરીયતી અને જાહેરી ખ્યાલવાળા આલિમો ગયા અને મંસૂરને શરીયત અને જાહેરી એકામથી બહાર નીકળી ગયો છે અને શરીયત અને જાહેરની એકામોનું રક્ષણ થાય માટે મંસૂરને કતલ કરો, ખલીફાને અરજ કરી. પણ ખલીફા પહેલા કઈ બોલ્યો નહીં, કે મંસૂરની હાલતથી વાકેફગાર હતો, પણ મંસૂર માટે એને દિલના અંદર એક અદાવત હતી, દુશ્મની હતી, એના કારણે એણે હુકમ કર્યો બાદશાહે કે મંસૂરને જેલમાં નાખો. તો જુઓ, આપણી આપણા આજુબાજુ ઘરે કે જમાતના અંદર ઇલમ મિજાલિસ કોઈના અંદર જ્યારે એ રોશની થાય છે તો આપણે એને ઇલમથી મૌલાની મોહબ્બતથી સમજવી જોઈએ, એનો એકરાર કરવો જોઈએ, એને સાથ સહકાર આપવો જોઈએ. પણ જ્યારે દાખલા તરીકે આ બાદશાહને સાચી વાત ખબર હતી પણ મંસૂર સાથે પર્સનલી દુશ્મનીના કારણે મંસૂરને જેલમાં નાખ્યો. તો દુનિયાની મોહબ્બત અને મોટાઈ બધું છોડીને સત્ય વાત આપણે કબૂલ કરવી જોઈએ. તો સાચી ચીજને સાથ સહકાર આપવાથી શાહ કરીમે ફરમાવ્યું કે તમે કોઈના વખાણ કરો તો ખુલ્લા દિલથી, સાચા દિલથી અને ભરપૂર વખાણ કરો, એના અંદર કંજુસાઈ ના કરો, કારણ કે સર્વે વખાણ અલ્લાહ માટે છે જે સગળી મખલુકાતનો પરવદિગાર છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. તો આપણે જ્યારે કોઈ સાચી ચીજના વખાણ કરીએ છીએ તો આપણે ખુદાના જ વખાણ કરીએ છીએ અને એના અંદર કંજુસાઈ ના હોવી જોઈએ. તો એવા જે ખુદાના સાચા આશિકીઓ દાઈઓ છે, મિશનરીઓ છે, એમને સાથ સહકાર આપીને આપણે આ ઇસ્માઇલી મઝહબનો વાવટો વધારે રોશન કરીએ. દરેકનું દિલ, જે આપણો મકસદ છે કે દરેક ઇસ્માઇલીનું દિલ મૌલાની મોહબ્બતથી, શનાકતથી, નૂરથી, નૂર, ઈમાન, નમ્રતા, આનંદથી, ઇલમ, ઇશ્ક, ઈમાન અને ઇબાદતથી ભરપૂર થઈ જાય, એ આપણે મકસદને આપણે પહોંચી શકીએ. મંસૂર પોતે પોતાની ઈચ્છાથી કેદમાં જવું. एक जा देखा है मैंने ये लिखा, पर नहीं अत्तार ने ऐसा कहा, यानी जब मंशूर जिंदान हो चला एक नादान उससे ये कहने लगा, हे अगर तुझ में किसी ढप का कमाल छूट जाना कैसे है क्या मजाल, सुनते ही तान मर्द बा खुदा दफ्तन नजरों से गायब हो गया, फोर लगा रहने अपना तौर पर गा गायब गा पल जाता था नजर. એક જગ્યાએ મેં લખેલું જોયું છે પણ તઝકતુલ અવલિયામાં શેખ ફરીદુલ અત્તારે તે લખ્યું નથી. મંસૂર જ્યારે કેદમાં ચાલ્યો તો કોઈ જગ્યાએ આ મસનવી લખવાવાળા એમ કહે છે કે મેં કોઈ જગ્યાએ આ રીતે વાંચેલું છે પણ શેખ ફરીદુલ અત્તારે એ નથી લખ્યું. પણ મંસૂરને જ્યારે કેદમાં લઈ જવામાં આવ્યો
અને નાદાને ટાણો મારીને એક નાદાને ટાણો માર્યો મંશૂરને. કઈ પૂર્ણતા રાખતો હોય તો કેદથી છૂટી જજે. આ ટાણાની સાથે મંશૂર ત્યાંથી ગેપ થઈ ગયો અને પોતાની રીતે રહેવા લાગ્યો. કોઈ વખત લોકોની નજરે પડતો તો કોઈ વખત તે દેખાતો નહીં. આવી રીતે મંશૂર રહેવા લાગ્યો. તો આ બધી ઘણી બધી ચીજો શેરો શાયરીના અંદર છે અને મિસ્ત્રી સાહેબે એકઠી કરીને એમનો મકસદ એ છે કે મંશૂરના અંદર જે રૂહાનીશ હતો અને એનું દિલ જે પાક અને સાફ હતું એ રીતે આપણે બી થાય. તો જરૂરી નથી કે બધી ચીજો આના અંદર સાચી જ હોય. તો જે એ સમયે જે બધી દુનિયાભરની કિતાબો હતી, લોકોની વાતો હતી, એના અંદરથી એકઠી કરીને આ ચીજો આપવામાં આવી છે. તો એક જગ્યાએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે મંશૂરને જ્યારે કેદમાં નાખવામાં આવ્યો તો કોઈ નાદાને એને ટોણો માર્યો કે અગર તારા અંદર કોઈ રૂહાની શક્તિ હોય તો તું આ કેદમાંથી નીકળી જા. તો મંશૂર ગેપ થઈ ગયો. તો કોઈ વખત નજરમાં આવતો તો કોઈ વખત નજરમાં નહોતો આવતો. देख पाता कोई घर उसको कहीं और उससे मांगता कुछ से वही बेतामील उसको मिल जाती वो चीज हैरत थी इस बात से थे वो बेतमीज और गाहे कैद कर लाते उसे बाद लहजे फिर नहीं पाते उसे एक मुदत तौर ये उसका रहा गाहे नजर आता है गाहे छुप गया કોઈ ઈસમાં મંસૂરને જોઈ જતો તો મંસૂર પાસેથી કોઈ ચીજ માંગતો હતો તો તે તુરંત મળી જતી હતી. તો કોઈ વખત મંસૂર દેખાતો હતો જાહેરના અંદર લોકો એની પાસે કાંઈ ઉમેદ લઈને આવતા હતા તો એ ઉમેદ પૂરી થતી હતી. કોઈ વખત તેને કેદ કરીને લાવતા તો એક પળમાં તે ત્યાંથી બહાર થઈ જતો હતો. કેટલાક સમય સુધી આવી રીતે ચાલ્યું. કોઈ વખત દેખાતો હતો તો કોઈ વખત નજરોથી ગાયબ થઈ જતો હતો. बोल नादान पर ए था सब शोरो शोर वरना उसको कैद से कब था अजर जब गया जिंदान में वो मर्द खुदा कैदियों को देखकर हर्जा बंधा बंद का अपने मुतलक गम न किया फिक्र में उनके रिहाई है पला सब हुई तो कैदियों से यूं कहा कैद पलने की તમારી વજહ ક્યાં તમારી વજહ ક્યાં આ બધી વાતો નાદાનના મેળા માટે થઈ હતી. નહીતર મંશૂરને કેદ થવાથી કાંઈ પણ ગમ ન હતો. જ્યારે મંશૂર ફરીથી કેદમાં ગયો તો તેને કેદને જુદી જુદી જગ્યાએ કેદ કરવામાં આવેલા જોયા કેદીઓને. મંશૂર તેમને છુટકારો આપવાની ફિકરમાં પડ્યો. તમામ કેદીઓને રાતમાં પૂછ્યું તમારું કેદમાં આવવાનું કારણ શું છે. જ્યારે મંશૂર કેદમાં ગયો તો બધા કેદીઓ અલગ અલગ જેલના અંદર હતા. એમને જોઈને મંશૂર દિલગીર થયો અને આમને કેવી રીતે છુટકારો આપવો એનો વિચાર કરવા લાગ્યો. લોકોને પૂછવા લાગ્યો કે તમે શું કારણથી આ કેદખાનામાં આવ્યા. તો આપણે બધા બી આ દુનિયાના કેદખાનાના અંદર છે. રૂહ કેદખાનામાં કોઈ વખત ખુશી નથી. રૂહ બદનમાં છે તે કેદખાનામાં છે. તો આ જન્મ લીધો છે અને ઇન્સાન આ દુનિયામાં જન્મે છે ત્યારે હજારો જાતના કરજો લઈને જન્મે છે. સૌથી મોટું કરજ એ છે કે પહેલા પોતાને પાક કરે. તો નાપાકીની હાલતના અંદર આ જન્મ લીધો છે. તો સૌથી મોટું કરજ છે કે પોતાને પાક કર દો તો બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોઈશી એ ફરમાયા કૌસરે સાકી જે હોજે કૌસરનું નુરાની પાણી પીવડાવાળો મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાવીન આલમીન છે. એ આપણને પૂછે છે કે ઇલમ વગર તું કેવી રીતે પાક થઈશ. તો આપણે બી આ દુનિયાના અંદર કેદખાનામાં છીએ. ના ફરમાની ગુનાના કામ દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈ ફિકર ચિંતા ડર ભય જાહેરી ખ્યાલો એનાથી આપણા રૂહને પાક કરીને આઝાદ કરીએ. हाल अपना जिस कदर था साफ साफ कर दिया हर एक ने सब व आश्कार सुन के ये मंसूर ने उनसे कहा जाओ सबको कर दिया मैंने रिहा बोले कैदी बंद हो जब तक नवा किस तरह हम कैद से होवे रिहा शेख ने ये सुन के उनकी गुफ्तगू हाथ जाड़े बेतामिल उनके सु કેદીઓએ પોતાની હકીકત ચોખે ચોખી બયાન કરી. એ સાંભળીને મંશૂરે તેમને કહ્યું જાઓ તમોને મેં છૂટા કરી દીધા. કેદીઓએ કહ્યું જ્યાં સુધી અમારા બંધન છૂટા ના થાય ત્યાં સુધી કેવી રીતે અમે જઈ શકીએ. એ સાંભળી મંશૂરે પોતાના હાથો એમની તરફ હલાવ્યા. બંધનો છૂટા થયા. તો અહીંયા એમ કહેવાય છે કે મંશૂરે પોતાની રૂહાની શક્તિથી કેદીઓને આઝાદ કર્યા. हो गए सब बंधन इन सब के जुदा बेतकलीफ हो गए वो सब रिहा दस्त बस्ता अस व फिर सबने की बंद है दर कुफल है उसमें दिया कि नजर मंसूर ने दीवार पर हो गया रखनों का यहाँ पर्दा असर यानी कैदी 400 जिंदान में थे 400 दीवार में रखने हुए. મંશૂરથી કેદીઓને અરજ કરી કે જેલના દરવાજાને તાળું મારેલ છે અમો કેવી રીતે બહાર જઈ શકીએ. મંશૂરે જેલની દિવાલ તરફ નજર કરી તો દિવાલને 400 કાણા પડ્યા. કેદીઓ પણ 400 હતા. તો 400 એમ કહેવાય છે કે 400 કેદીઓ હતા મંસૂર સિવાય બીજા. તો મંશૂરે એમને આ જેલખાનામાંથી આઝાદ કર્યા. તો
जो આપણે બે શાયરીઓ પઢીશી પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીએ. फिर हर एक रखने से बेखौफो खातर निकले कैदी और पहुंचे अपने घर देखकर घरों दरोदा ने ये माजरा दस्तों पाको शेख के बोसा दिया और ये रोकर कहा ये मेहरबान आप भी हो था इस रब सबके रवान मुझ पे जो होगा खलीफा का अताब के जबान पर आएगा वो दूंगा जवाब કેદીઓ નિર્ભયપણે દરેક કાણામાંથી નીકળીને પોતાના ઘરે જઈ પહોંચ્યા. આ બનાવને દરોગાએ નજરે નજર દીઠો. તે મંસૂરને પાસે આવીને મંસૂરના હાથ પગ ચૂમીને રડીને અરજ કરી કે ઓ મહેરબાન આપ પણ અહીંથી રવાના થઈ જાઓ. ખલીફા મારા ઉપર ગજબ કરી જવાબ માંગશે તો મને જે આવડશે તે જવાબો આપીશ. તો જ્યારે એમ કહેવાય છે કેદખાનામાં 400 કેદીઓને મંસૂરે આઝાદ કર્યા અને મંસૂર પોતે જાહેરના અંદર કેદખાનામાં રહ્યો તો જે દરોગા હતો જે જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હતો એ મંસૂરના હાથ પગ ચૂમીને કહેવા લાગ્યો કે જનાબ તમે બી આ જેલમાંથી જતા રહો નહીં તો જે ખલીફા છે બાદશાહ છે એ મારી પાસે જવાબ માંગશે તો હું એને શું જવાબ આપીશ. सुनके मंसूर ने उससे कहा सबको घर है दार पर ये मेरी जाह दार को मैंने किया जब अख्तियार कैद हो जिस तरह मुझको नागवार जलद अब इस जा से हो तू भी रवान ता करूं मैं याद खालिक एक जमान. દરોગાની વાત સાંભળીને મંસૂરે કહ્યું કે સર્વેને ઘર છે મારું સ્થાન ફાંસીના માચડા ઉપર છે મેં ફાંસીનો માચડો જ્યારે દિલદારની ખાતર કબૂલ રાખ્યો છે પછી મને જેલનો શું ભય છે હવે તું પણ તારી જગ્યાએ ચાલ્યો જા કે હું એકાંતમાં મારા ખાલિકને યાદ કરું. તો જ્યારે જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ દારોગાએ કહ્યું કે જનાબ તમે પણ જતા રહો ને તો ખલીફા મારી પાસે હિસાબ માગશે કે આ કેવી રીતે થયું શું થયું. તો મંસૂરે કીધું કે આ લોકોને જે કેદીઓ જતા રહ્યા એ લોકોને ઘર છે પણ મારું ઘર તો ફાંસીનો માચડો છે. એ ફાંસીના માચડા પર હું મારા દિલદારના ખાતર કબૂલ રાખ્યો છે મને હવે જેલનો શું ડર છે. એટલે કે મારો મકસદ હવે આ રૂહાની ઇશ્કના અંદર ફના થઈ જવાનું છે એક થઈ જવાનું છે મને આ દુનિયાની જેલનો કોઈ પરવા નથી. અને દારોગાને કીધું કે તું તારી જગ્યાએ જા મને મારા રૂહાની ઇશ્કના અંદર મસ્ત રહેવા દે. તો શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે અહીંયા સુધી વાંચ્યું છે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો તમારા ફોનના અંદર જે 7 નંબર છે એના નીચે સ્ટારને તમે 2 વાર ટચ કરશો તો તમારો ફોન અનમ્યુટ થશે તમે મારી સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તો આજની વાઇઝ માટે આગળની વાઇઝો માટે ઇસ્માઇલી મઝહબ માટે તમને કંઈ પૂછવું હોય તો મૌલાની મહેરબાનીથી હું કોશિશ કરી શકું છું. તો આપણી પાસે 27 મિનિટ છે તો લગભગ 25 મિનિટ સુધી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખી શકીએ છીએ વાતચીત કરી શકીએ છીએ. અલી મદદ કોણ મારી સાથે વાત કરવા માંગે છે? જલાલુદ્દીનભાઈ નુરાની યારી મદદ. જલાલુદ્દીનભાઈ હા હા યાલી મદદ કેમ છો ભાઈ? બિઝી છો? તો નસરીનબેન છે એટલાન્ટા વાળા. જલાલુદ્દીનભાઈ બિઝી લાગે છે. યાલી મદદ આપા કોઈ નવા મેમ્બરોને વાત કરવી હોય? यारी मदद मौला अली मदद कौन बोले? फरजाना हाँ हाँ फरजान आपा बोलिए एटलांटा से. कैसे हो आप? बस शुक्र कैसे आप? कहाँ हो आप? पहले बहुत बातें होती थी हमारी. जी हाँ, सब सही है? हाँ जी जी मैं आपको सुनती हूँ हमेशा. हाँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह. ये क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब एक ये हम है मौला ने फरमाया कि जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना. तो खुदा को तो हम इल्म से तो पहचान सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा. लाइक इल्म से तो रब पहचाना तो खुदा को पहचाना से तो खुद की पहचान हमें कैसे मिलेगी कि हम मतलब ठीक है इल्म से तो पता है कि हम रूह हैं, हम रूहान में हैं. लेकिन
उसकी खुद की असल पहचान तक हम पहुँचे कैसे? बराबर, सही है। और कुछ आपको पूछना है? नहीं, बस यही क्वेश्चन मुझे तो दिन से आप में आ आप रहा था। आपने इस सवाल के बारे में आपने क्या सोचा? आपने कुछ गौर-व-फ़िक्र किया होगा, थोड़ा बहुत सोचा होगा, समझे होंगे? हाँ, मतलब जब फरमान पे सोचा तो मौला का फरमान ख़याल आता है 313 का कि तुम्हारी हुँ, आपकी ज़िंदगी कब तक बेफ़ायदा बेख़बरी से गँवाते रहोगे, हुँ, तुम्हारे वजूद को पहचानो, तो मतलब हुँ, हमारे हम कहाँ से आए, तो हमारी रूह कहाँ से आई है। तो हुँ, हुँ, ये तो पता है कि हम रूह हैं, हमको बस अब वो रूह के भान में जाके हम कैसे अपनी असलियत को पहचानेंगे। कि हुँ, जब हम हुँ, अपने आप को पहचानेंगे तब जाके हमको खुदा की पहचान होगी ना। बराबर है। तो देखो वाइज़ की शुरुआत में आपने आपने शुरुआत से सुन रहे हो राइट वाइज़? अभी आज की हाँ, हाँ, 10-15 मिनट के बाद शुरू। हुँ। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया और आपने भी सुना है, कोई नई बात नहीं है। हुँ, तो खुदा खुद छुपा खजाना था राइट? और कोई नहीं था। खुदा को ये चाह हुई कि लोग मुझे पहचाने, मेरी इबादत करें, मेरे नूर में एक हो जाए। तो अपने नूर से नूर जुदा किया और नूर को नाम दिया मोहम्मद। सारे पीर पैगंबर में वो मोहम्मद का नूर था और उनका काम था कि हाज़र जुमे की शनाख्त करवाना, राइट? और जमात उम्मा उसकी इबादत करे, वो नूर में एक हो जाए, राइट? और मोहम्मद के नूर में से पूरी कायनात की रचना हुई और जितने भी जीव है 8.4 मिलियन है, 84 लाख जीव है, उसमें इंसान जो इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है उसकी अक्ल की वजह से, वो मौला ने मेहरबानी करके करम बख्शी फरमा के हमको बनाया। पीरों ने गिनान में फरमाया कि 50,000 साल का फेरा लगता है इंसानी रूप लेने में। और वो इंसान के अंदर हम मुसलमान हैं, हम शिया हैं, हम इस्माइली हैं और हमको ऐसा इल्म मिला है, जो मौला ने फरमाया कि खुदावंद ताला એ તમારી ઉપર ઘણી જ મહેરબાની કરી છે. મહેરબાની નહીં, ઘણી નહીં, ઘણી જ મહેરબાની કરી છે કે તમને મોહબ્બતથી 56 દિનમાં જન્મ આપ્યો છે. ક્યોંકि મૌલાને ફરમાયા કે તમારામાંના ઘણા એક એવા છે કે જેઓએ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલા છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ. પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની ખૂબી શું છે, તે વિશે તેઓને કાંઈ ખબર નથી, તેઓ नादान છે। तो मौला ने हमको ये इल्म इजालिस में लाके ऐसा इल्म दे के हमको इतना करीब कर दिया उसके કે ઇલ્મ से तो रब पहचाना और ઇલ્મ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ कि जो वजह से सिर्फ हमने जन्म लिया है इस्माइली मज़हब के अंदर, लेकिन ज़्यादातर मौला ने 48वें जुमे में फरमाया कि आपके अंदर ऐसे है, जिसने सिर्फ अपना नाम इस्माइली मज़हब में लिखवाया है, लेकिन इस्माइली मज़हब क्या है, उसकी खूबी क्या है, उनका उनको कोई पता नहीं है और उसकी वजह बताई कि वो नादान है। तो मौला के ही फरमान मुबारक से हम समझे कि नादान कौन है, तो फरमान ना सुने वो नादान है। तो हम कहते हैं हम सुनते हैं, तो मौला ने फरमान के फरमान ध्यान में नहीं नहीं ले मूर्ख नादान से। उसको ध्यान में लिया, उसके मुताबिक अमल किया। अगर सुना और उसके मुताबिक अमल किया तभी हमको पता चलेगा कि इस्माइली मज़हब क्या है, उसकी खूबी क्या है। तो इमाम की खूबी नूर है, तो इमाम खुद इस्माइली मज़हब है और इमाम की जो बातूनी शनाख्त है, वो इस्माइली मज़हब की खूबी है। इमामની ખૂબી છે તે નૂર છે, જો તે નૂર જોવામાં આવે તો ઇમામની ખૂબી છે। तो ये सच्चे मायने में इस्माइली है। तो खुदा ने पूरी कायनात बनाई, एनिमल जानवर में बनाया तो हज़ारों किस्म के जानवर हैं। उसमें बब्बर शेर को, सिंह को गुजराती में बोलते हैं लायन, उसको राजा बनाया। पंछियों में बाज राजा है, फ्लावर्स के अंदर गुलाब राजा है, मेवे के अंदर फ्रूट में आम राजा है। इस तरह मज़हब बहुत वाइड है। आपने स्टार्टिंग में नहीं सुना था, तो मैं आपको शॉर्ट में जो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ बताई थी। तो मज़हब के अंदर जैसे कि हम नहा धो के जमा खाने जाते हैं, तो पार्किंग लॉट में वॉलंटियर हमारी गाड़ी पार्क करवा में हेल्प करते हैं, वो खिदमत करते हैं। वॉलंटियर दरवाज़ा पकड़ के खड़े रहते हैं, वो खिदमत करते हैं। बच्चे और वॉलंटियर हमारे हाथ में से मेहमानी लेते हैं। हम रेज़ा पर पे चेंज कराते हैं, दुआ कराने के लिए हई ज़िंदा बोलते हैं, तौबो-तौबो करते हैं। सजदा करके पूरी कायनात कुल रूहानी जगत भरे सारे इस्माइली के लिए दुआएँ करते हैं, मौला का शुक्र करते हैं और हम जो वक़्त में जो क्रिया होती है उसमें एक ध्यान होने की कोशिश करते हैं, गिनान मुबारक, फरमान मुबारक बोले जाते हैं, हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दुआ पढ़ाती है, बैतुल खल की बंदगी होती है, मुफ़ती साहब दुआएँ देते हैं, ये सारी चीज़ों में हम शामिल होते हैं। तो कितनी चीज़ें हैं मज़हब के अंदर।
दुआ, दसून, मेहमानी, शुक्रित, इबादत सारी चीज़ें हैं, राइट? लेकिन जिस तरह पूरी कायनात के अंदर हर चीज़ पे एक मर्तबा है जिसको कहिए पूरा-पूर। तो हर चीज़ जो खुदा ने बनाई है उसके अंदर एक जन को उसका मर्तबा दिया है। जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स के अंदर बब्बर शेर है, सी है, पंछियों में बाज है, फ्लावर्स के अंदर गुलाब है, मेवे के अंदर आम है। इस तरह मौला ने खुद फरमाया कि मर्तबा इल्म केरा नहीं, इल्म केरा, यहाँ पे इल्म है, मर्तबा इल्म केरा, सब हुनर पर है आला, कि इल्म से तो रब पहचाना। तो इल्म और इल्म क्या है? તમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે। तो बहुत सारे फरमान है, जितनी कायनात की रचना हुई सब पैगंबर को वक्त पे फरमान किए जाते थे, आज भी किए जा रहे हैं, राइट? उसकी भी मायना निकालने में आती थी। तो फरमान मुबारक की हम बातें करें तो हेल्थ के फरमान है, इंश्योरेंस के फरमान है, एजुकेशन के फरमान है, माइग्रेशन के फरमान है, काफी फरमान मुबारक है, राइट? लेकिन मौला ने फरमाया हमारा जो फरमान था जेमा તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પढ़ो। तो ये रूहानी समझ के जो फरमान है, जो हमारे रूह की नजात के लिए है, हमारा रूह कैसे पाक और साफ होवे और मौला के नूर में एक होवे, उसके बारे जो फरमान मुबारक है और उसका भेद बातिन जो खूबी है, उसको इल्म कहा जाता है। तो देखो, जो 313 के फरमान जो मुबारक उसके जो पेशे लफ्ज़ है, बेबोल छे, तो उसके अंदर जो फरमाया गया है कि आए फरमानों ने यानी रूहानी समझ के फरमान मुबारक, एक ध्यान थी वाचवाती रूहनी साची समझ, इनटू ब्रैकेट इल्म। तो इल्म क्या है? इल्म जब तक हमको रूह की सच्ची समझ नहीं आई और जितना भी हमने इल्म मुबारक सुना, पढ़ा, लिखा, होमवर्क किया, मनन चिंतन, गौर फ़िक्र, वो सारा इल्म है। और रूह की सच्ची समझ आना, ज्ञान में नूर है, ज्ञान में साहेब छे, वो इल्म है। आए फरमानों ने एक ध्यान थी वाचवाती रूहनी साची समझ, इनटू ब्रैकेट छे इल्म, જે થકી રૂહાની ઇશ્ક અને તે રૂહાની ઇશ્ક થકી બાતુની ઇબાદત શક્ય છે, જે થકી એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ઇન્સાન પોતાની જિંદગીના મકસદને પામે છે। कोई कहेगा कि ये तो पेशे लफ्ज है, बेबोल से, ये कहाँ है फरमान मुबारक में? तो हमने ध्यान से फरमान मुबारक पढ़े हैं, सुने हैं, गौर फिक्र किया है, तो हमको ये चीज इल्म में मिलेगी कि आए फरमानों ने एक ध्यान थी वाचवाती रूहनी साची समझ यानी कि इल्म। तो वो कहाँ पे है? तो मन अरफ का भेद यानी रूह की सच्ची समझ, हमारा रूह खुदा का नूर है, उसकी सच्ची समझ इल्म के अंदर है। रेन दिन मिलो जाए इल्म मिडलस में तो भेद मुर्शिद बतलावे। उसके बाद रूहानी इश्क है, तो कहाँ है वो? कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रब का ने। बाद में उससे बातूनी इबादत की समझ आती है, जिससे एक सुई एकाग्रता हासिल होती है। तो वो खुदा को मिलना इबादत पे है, वो इबादत है, खास करके बातूनी इबादत है। वो क्या है, कैसे होती है, उसमें क्या होता है, वो चंद लोगों को ही पता चलता है, सबको पता नहीं चलता है। वो चंद लोग कौन है? तो 313 फरमान मुबारक में मौला ने फरमाया कि चंद अफराद असल मकान पे पहुंचे और वो अपने रूह के आशिक थे, रूह के दोस्त थे। तो इल्म से तो रब पहचाना, अपनी रूह की शनाख्त की, उसकी दोस्ती की, उसके आशिक बने और वो असल मकान पे पहुंचे। उनको ये बातूनी इबादत का पता चला, एक सुई एकाग्रता हासिल हुई और मौला के नूर में एक हुए। तो ये मौला ने आसान मज़हब हमको बताया, राइट? अभी आपने जो फरमाया बताया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। क्यों? कि हमारा देखो, हम फरमान मुबारक के अंदर पढ़ेंगे तो તમારો रूह बीमार होए। एक बाजू मौला ने फरमाया कि बदन को बीमारी लागू पड़ती है, रूह को कुछ नहीं होता है। तो वहाँ ऐसे मोमिनों को फरमाया कि उनको जिस्म को बीमारी भी लगे लेकिन उनके रूह को कुछ नहीं होता है। उनका रूह वो दरज्जे पे पहुँच गया है कि મોમન હશે તે મસ્તાના સિંહ જેવો હશે, તેને કાંઈ પણ દાસ્તી નથી, ત્યાં દુનિયામાંથી છૂટ્યો કે આરામથી ચાલ્યો જશે। रूहનો પણ દરિયો છે, रूह પણ ત્યાં જશે તેવી ઉમેદ રાખે કે અસલ મકાને પહોંચે। उनकी हालत ऐसी हो गई है કે મોમનને અગર રગત પિત્તનું દર્દ હોય તો પણ તેનું દિલ નુરાની અને દરિયાના પાણી જેવું સફેદ હોય છે। તેના પર ગમે તેટલા દુઃખ આવી પડે તો પણ તે દિલ ઉપર લાવતો નથી। ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો, તમે પણ ફના ફિલાતા હો। પીર સમદ સાહેબને ફરમાય કે પાડી પાડી પટોળે ભાત તે તો ફાટે પણ ફીટે નહીં હોજી, વાળી વાળી હિરલિયાની ગાંઠ તે તો તૂટે પણ છૂટે નહીં હોજી। तो एक एक बाजू मौला ने फरमाया कि बदन को बीमारी लागू पड़
प्रति रूह को कुछ नहीं होता। एक तरफ मौला ने फरमाया कि आपका रूह बीमार हो, तो हम उसके डॉक्टर हैं। तो ये हैवानियत की हालत है। हमारे अंदर मौला का नूर का कतरा हमारा रूह है, लेकिन उसके ऊपर नाफ़रमानी, गुनाह के काम, दुनिया की बड़ाई, मोहब्बत, फ़िक्र, चिंता, डर, भय, ज़ाहिरी ख़्याल के पर्दे लगे हैं। तो वो रूह की हालत हैवानियत जैसी है। उसके ऊपर क्या होता है जब हमको समझ आती है, सही मायने में, कि फ़रमान ज़वाहिर है, उसको जो उठा लेता है वो इंसान है। अच्छे-बुरे की उसको जो समझ आती है वो इंसान है और जो ऊपर जाने की असल मकान पहुँचने की उम्मीद रखता है वो इंसान है। लेकिन यहाँ ये रूह को भी मौला ने कबूल नहीं किया। मौला ने फरमाया मोमन रूह ते अमारो रूह छे। यहाँ कबूल किया मोमिन की रूह को क्योंकि ये सारी चीज़ों के अंदर मज़हब बहुत वाइड है, काफ़ी चीज़ें हैं और इल्म का दर्जा मौला ने सबसे ऊपर रखा है और जब अपने रूह रूह के ख़्याल में कोई रहता है, तो उसका दर्जा बहुत आला है। एक कलाक ख्याल करजो કે રૂહ શું છે આવી રીતની આદત હોય ત્યારે મોમન થાય और મોમન के रूह को मौला ने मोमन रूह ते અમારો रूह છે। तो देखो, तो खुद को पहचानना यानी हम समंदर के किनारे गए, समंदर के कैसा है मौला ने फरमाया कि इल्म मर्तबा दरिया जैसा जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद ऊंडा जिसमें चिज़ा अनंत अपार। तो ये दुनिया के अंदर एक समंदर की मिसाल दी है, बहुत गहरा बेहद ऊंडा है, कोई वार न पार है। वो समुंदर के पानी के अंदर से हम एक ग्लास भर के लोट पानी लेते हैं, तो वो जो एसेंस है समंदर के पानी में और लोटे के पानी में हमने जो समंदर में से लिया है, उसके एसेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उसकी जो समंदर की बड़ाई है, हमेशा बड़ाई देखो तो मौला मुर्तज़ाली के है, मौला मुर्तज़ाल इल्म के समंदर है। उसमें से हमने वो लोटा भर के पानी लिया है। तो एसेंस दोनों में एक है, लेकिन अगर बड़ाई, महानता, सुभान जो मौला पाक है और खालिक है, रब है, उसके सामने वो लोटे के पानी की कोई मिसाल नहीं हम दे सकते, राइट? लेकिन दोनों के अंदर एसेंस एक है। अब ये लोटे के पानी को हम समंदर के पानी में मिला देवे और हम पूछे कि वही पानी मुझे वापस चाहिए तो नहीं मिलेगा क्योंकि ईसा हकीकती था, वो खुदा में फना हो गया, साले नूर में मिलके खुद नूर हो गया। अभी आप उसको देख नहीं पाओगे। तो जो शाह रहीम है, एक तो जिस्मानी स्वरूप में अंदर मौला लिस्बन में मौला का तख़्त है और पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं मौला और पूरी सृष्टि में पसरे हुए ज़र्रे-ज़र्रे में, हर एक के दिल में है और हमारे खुद के दिल के अंदर है मौला। वो नूर की हम जब शनाख्त करते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि मोमन और मुर्शिद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं, फिर भी वो मोमन है ना, अभी मुर्शिद के अंदर एक नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह दिल मजबूत रख के एक दिल होना है, लेकिन ये एहसास कब होता है? अब आप मेरे लिए इश्क रखते हो, मैं आपके लिए इश्क रखता हूँ, तो आप में और मुझ में कोई जुदाई नहीं है। तो इश्क ऐसी चीज़ है, वो सब जला के नाफ़रमानी, गुनाह, बड़ाई, दुनिया की मोहब्बत, फ़िक्र, चिंता, डर, भय, ज़ाहिरी ख़्यालों को जला देता है। तब ये एहसास होता है जो मंशूर को हुआ कि मुझ में और मौला में कोई जुदाई नहीं और बाद में वो रूह पाक होने से आज़ाद होता है और मौला के नूर में एक होता है। तो खुद को पहचानना, यानी हमारे अंदर ही रूह है। मौला ने फरमाया કે ખુદા તહેકીક અસ્તી ધરાવે છે જેમ કે તમારા દિલમાં શાહીદી આપે છે. ખુદા ના હોય તો તમને ચેતવણી કોણ આપે? જ્યારે તમે ખરાબ કામ કરો છો ત્યારે કહે છે આ ખરાબ काम છે તું नहीं कर તમને सारू काम करवा માટે કહે છે. तो वही चीज मौला ने अपने रूह के बारे में बताया कि तो तुम्हारे में जो रूह है वो क्या है? जब आप अच्छे काम करते हो तो कहता है अच्छा काम है तू कर और बुरे नरसे काम करने के लिए आपको मना करता है। तो हम हमारे रूह के साथ कनेक्टेड रहे हुए और हम जब पाक और साफ होते हैं दिल यानी कि रूह पाक રાખવાથી મુક્તિ મળે છે। तब सही मायने में हमको पता चलता है कि जिसने अपने आप को यानी हड्डी मांस गोश्त को नहीं हमारे अंदर शाह रहीम का नूर का कतरा है वो रूह को हमने पहचान लिया। तब पता चलता है कि मेरे रूह के पाक और साफ हो गया और मेरे रूह के अंदर जो एसेंस है वही शाह रहीम के नूर के अंदर है। जैसे समंदर के पानी के अंदर H2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है जिससे पानी बनता है। और लोटे के पानी के अंदर भी वही है। लेकिन लोटे का पानी जब तक समंदर के पानी में नहीं मिल जाता तब तक वो समंदर नहीं बनता है, राइट? तो खुद को पहचानना
और वही खुदा को पहचानना यानी कि हम अपने रूह को पहचान लेते हैं, तब हमको पता चलता है सही मायने में कि हम ये हड्डी, मांस, गोश्त नहीं है, हम रूह है। हमारा वजूद रूह है और हम शाह रहीम के नूर के कतरे, वो नूर में एक हो जाना है। और ये सबसे आसान चीज़ मौला ने बताया कि इल्म से तो रब पहचाना, बिन इल्म तू पाक क्यों होइसी। तो अभी हम जो सुन रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, होमवर्क कर रहे, मनन चिंतन के, वो इल्मुल यकीन है। हम इल्म पे हमने वो चीज़ देखी नहीं है, हमने महसूस नहीं की है, लेकिन मौला हमारा मालिक है और वो कहता है कि मैं नूर का समंदर हूँ, मेरे नूर में एक हो जाओ। उस पे हम ईमान लाते, उसको इल्मुल यकीन कहते हैं और उस पे अमल करते हैं तो ऐनुल, ऐन यानी आँख देखते हैं और वो यकीन का दरज्जा जब टॉप मोस्ट हो जाता है, उसको हक्कुल यकीन बोलते हैं। और बाद में चीज़ आती है कि जो इश्क बराबर हो, तो जो ईमान, जो नूर है, वो शाह रहीम के नूर के अंदर एक हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि खुद को पहचानना, गोया खुदा को पहचानना। तो जब तक हमारा दिल पाक और साफ नहीं होता है, नाफरमानी, गुनाह ने काम, दुनिया की मोहब्बत बढ़ाए, फ़िक्र, चिंता, डर, भय, ज़ाहिरी ख़्यालात, तब ची तब तब तक हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बराबर? आप सुन रहे हो आप? जी, जी, हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, तो देखो, सबको 24 घंटे मिले हैं। हमको हुँ, जहाँ तक हो सके शाह रहीम ने भी फरमाया कि जमात खाना जाके ज़ाहिर में हम दुआ, इबादत, बंदगी करें और बाकी जो वक़्त है मौला ने फरमाया इंसान को 6 घंटे नींद के लिए काफ़ी है। किसी तबीयत बराबर नहीं है, दवाई लेते उम्र हो गई तो 1 आध 2 घंटा बेड में ज़्यादा रहवे, लेकिन वो दरमियान भी मौला को याद करता रहवे और बाद में हम बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं या हाउसवाइफ़ है, तो हम अच्छी तरह समझ लें कि इंसान का मकसद है असल मकान पे पहुँचे। दुनिया में हमारे आने का मकसद ये है कि हम हाज़िर इमाम की बातों की शनाकत करें, मौला की इबादत करें, उसकी मोहब्बत यादगिरी में मशगूल रहे और नूर में वो हो जाए। ये हमारे दिमाग में से निकलना नहीं चाहिए। अगर ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है, तो हमारे कर्म के हिसाब से हम जो काम करते हैं, हमको बिज़नेस करना पड़ता है। कई कई लोग नहीं करते, उनकी आमदनी अच्छी है। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग नहीं करते, उनकी आमदनी अच्छी है। कई लोग घर का काम करते हैं, तो पूरा दिन घर का ही काम करते रहते हैं, करके उनको समझ ही नहीं है कि मेरे अंदर रूह है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। वो करते ही रहते हैं। कई कई लोगों के पास पैसा अच्छा है, तो कोई काम वाली बाई को थोड़ा पैसा देके घर का काम करा देते हैं। वो इबादत के अंदर, इल्म के अंदर मशगूल रहते हैं। तो ये सारी समझ इल्म से आती है। तो बाकी 2 वक़्त के जमात खाने जाने के बाद 6 घंटे आराम करके, हमारे कर्म के हिसाब के हमारे पे हस्बैंड की, बच्चों की, जॉब की, बिज़नेस की जवाबदारी है। उसके दरमियान भी हम डीपली स्टडी करें ना, तो हमको पता चलेगा कि मेरा टाइम बेफिज़ूल कई चीज़ों में जा रहा है। मैं बेफिज़ूल फ़ोन उठाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, मौज शौक के अंदर, टीवी के अंदर मेरा टाइम जाता है। मैं क्यों अपना टाइम मौला के अंदर ना दूँ कि जो वजह मुझे ये दुनिया में आया हूँ और वो मुझे पूरा करना है। तो ध्यान लगे कि नहीं लगे, हम उसके अंदर दिलचस्पी बढ़ाते जाते हैं और जब हमारा दिल पाक और साफ होता जाता है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये चीज़ ज़रूर एक दिन रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी। और हम ईमान रखें। जैसे कि मौला ने फरमाया कि एक बार पिरशा के नाम का ज़िक्र किया तो पूरे दुनिया के हीरा, जवाहिर, मोती का आपने मुझे दान किया। भले ध्यान लगे कि नहीं लगे, मौला ने अपने ज़बान मुबारक से फरमा दिया, तो फरमा दिया। पाक तो साहिब जिन्हू नाम है, राइट? और मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला। ये तस्बीह, इसमें आज़म, इल्म सब एक ही है। लेकिन ध्यान लगाने में मौला ने फरमान मुबारक से, पीरों ने गिनान से हमको समझाया है कि ये रास्ता आसान हो जाता है। हम आपके लिए आसान मज़हब लेके आए हैं, आसान रास्ते से पार उतारने आए हैं। इल्म के ज़रिए से पहाड़ जैसी मुश्किलात, जो यादगिरी रखना पहाड़ जैसा मुश्किल है, वो इल्म के ज़रिए आसान हो जाता है। तो हम हिम्मत रखें और मौला की यादगिरी में मशगूल रहें, हमारा टाइम बचाएँ, कैसे हम मौला को अच्छी तरह याद कर सकें, कंफर्टेबली याद कर सकें, ज़्यादा याद कर सकें, उसका हम गौर-व-फ़िक्र करें। ठीक है? थैंक यू हाँ, सर, वेरी शुक्र मच। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो पूछो सवाल, क्या है कि हम इल्म सुनते हैं, इल्म मजालिस में आते हैं, जमा खाने जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा दिल की जो हालत क्या है? हम कहाँ बैठे हैं? हमको कौन-सी चीज़ सता रही है? हमको कौन-सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है? वो हमको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है इल्म मजालिस में। क्योंकि माशाअल्लाह आपको बहुत मुबारकबाद है कि आपने सवाल पूछा, यही सवाल काफ़ी लोगों का होगा और ये रिकॉर्डिंग होता है, 50-100 साल तक, मैंने बोला हज़ारों साल इंशाअल्लाह।
तो ये सुनी जाएगी, लोगों के मसले हल करेगी, इसमें मौला के फरमान मुबारक, पीरों के गिनान मुबारक से जवाब दिए गए हैं, राइट? तो पूछना चाहिए। कोई ऐसे सवाल है जो मतलब पर्सनली है, हम लोगों के बीच में डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम फ़ोन करके हम मैसेज छोड़ के, वॉइसमेल छोड़ के हम पूछ सकते हैं, राइट? मैं कोई जगह का, किसी का नाम नहीं लेता हूँ ऐसे सवालों के अंदर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच आपा। थैंक तो यू। उम्मीद रखता हूँ कि आपको जवाब मिला है और हम सब इसके मुताबिक हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आमीन। हमारा रूह जल्दी मौला के नूर में एक हो जाएगा। बहुत हिम्मत रखना है, घबराना नहीं है। मौला हमारे पास है, शाह रहीम ने फरमाया आपको कोई भी फ़िक्र हो, चिंता हो, आप मेरे मेरे सामने देखो, मुझे याद करो। मौला मुश्किल कुशा है, इंशाअल्लाह हमारी सारी मुश्किलात मौला आसान कर देगा। हेलो? जी। हाँ, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, नहीं, बस थैंक यू, आपने सही जवाब दिया। आमीन। मुझे सोच रही थी इसके ऊपर कि मतलब जब तक मौला बोलता है ना कि स्वामी के गुण जब तक हमारे अंदर नहीं पड़ जाते, जब राइट। हम वैसे नहीं बन सकते। स्वामी ना गुण जिन्हें हृदय वसे, तो टिपिकल जो खास है, तो जब हमारे अंदर सब हो जाएंगे तो हम उसके जैसे बन जाएंगे। तो पीरों ने गिनान में फरमाया ना कि सद्गुरु भेटिया ते केम जानिए, तो हम्म, मन परखी ने जोए। आपको हम्म, ये सवाल है कि मुझे सद्गुरु भेटे कि नहीं भेटे, सच्चा गुरु मौला शाह रहीम, तो कैसे पता चलेगा? तो मन परखी ने जोए। आप अपने मन को परखो, अपने रूह को, अपने दिल को परखो तो पता चल जाएगा। जैसे चंदन केरे निम सुगंधा होए, एक नीम का झाड़ है जो कड़वी खुशबू देता है, एक चंदन का झाड़ है जो खुशबू देता है, तो उसके सहवास में रह के उसके गुण आ गए। तो मौला ने फरमाया हमारे रोजिंदा जीवन में हम निखालस, प्रामाणिक, सच्चे, ईमानदार होने चाहिए, राइट? हम मन, वचन, कर्म से हम पाक होने चाहिए, हमारा दिल पाक है, साफ है। इसलिए मैं कहता हूँ रात को सोने के वक़्त 15 मिनट हम मोमन के रूहानी राज के मोमन के फरमान पढ़े। तो हमको पता चले कि मोमनના ખ્યાલ, વિચાર, બાતુન સર્વે પાક જોઈએ, કાંઈ પણ એબ ના જોઈએ। मोमन अर्थ वगरनी नकामी बड़बड़ करतो નથી। तो ये सारी चीज़ें हम देखें कि मेरे अंदर ये है, मेरे 24 घंटे ऐसे गए। 125वां फरमान पढ़ो, कलाम मुबीन पार्ट 1 में जो रूहानी रोशनी, तो हमको बताएगा कि हम कहाँ पे हैं, राइट? हमारा रूह पाक साफ हुआ है कि नहीं? स्वामी के गुण हाँ, हमारे अंदर आए हैं कि नहीं? जी, हाँ, तो जो सही मायने में ये फ़िक्र है कि भई जैसे बिज़नेस करते हैं, 10,000 नफ़ा होता है, हर महीने में हिसाब करते हैं, अभी 8,000 7,000 हो गया तो फ़िक्र लगती है कि भई कहाँ पे ये नुकसान हो रहा है? क्यों बिज़नेस नहीं हो रहा है? कोई कस्टमर चोरी कर रहे हैं या मेरे एम्प्लॉयी चोरी कर रहे हैं या मैं खुद बिज़नेस में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कैसी फ़िक्र लगी रहती है? जॉब के अंदर हमारा पगार नहीं बढ़ता है, तो हमको फ़िक्र होती है कि भई क्यों नहीं बढ़ता? इतने सालों से काम कर रहा हूँ, राइट? घर घर के काम-काज के अंदर साफ-सूफ़ी ये सब रखते हैं, राइट? तो इस तरह हम अपने रूह का भी ख्याल करें। हम मन, वचन, कर्म से पाक हैं, हमारा दिल पाक और साफ हुआ है कि नहीं? मौला की यादगिरी, मोहब्बत में इज़ाफ़ा हुआ है कि नहीं? तो ये इसको कहते हैं कि अपना मन परखो, देखो, राइट? हाँ। हुँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपा। थैंक यू मौला वेरी आपकी मच। और सबकी सारी मुश्किलात आसान करे। सबको जी, अच्छी तंदुरुस्ती देवे। मौला सबका ईमान आखिरी दम सबका, सबके बच्चों का ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। मौला आमीन, जल्द से जल्द यही जन्म में सबको अपने नूर में एक कर दे और कुल आमीन। रूहानियों को मौला असल मकान पे पहुँचाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सॉरी अभी मैं और सवाल पूछने वालों के साथ बात नहीं कर पाऊँगा आज। तो अगर किसी को सवाल है तो नेक्स्ट टाइम तैयार रहें और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, वॉइस मेल भी छोड़ सकते हो। तो इंशाअल्लाह कोई ऐसे सवाल होंगे तो मैं कोई जगह का, किसी का नाम भी नहीं बताऊँगा। लेकिन हमारे अंदर गैर समझन, मूंझवण ये सब नहीं रहनी चाहिए, राइट? हमको पूछना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी हम दुआएँ देके आज की लंबी जालिस पूरी करते हैं। शुक्र। हाज़रीन तमाम इल्म इजलसना भाई-बहनों ने जगत बना तमाम इस्माइली भाई-बहनों ने अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन धड़ी सलामत दातार सरकार आका नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम मौला दरेक ने जगत बना तमाम इस्माइलियों ने एमना बच्चाओं ने दरेक ने मौला मेहरबानी करी करम बख्शी फरमाई दया करी सुखी सलामत ने आबाद रखे आमीन, मौला दरेक नु ईमान छे लादम सुधी सलामत रखे आमीन, मौला बधानी नेक उम्मीदों पूरी करे मौला बच्चाओं ने आमीन, एजुकेशन में एक्सेल करे मौला बच्चाओं ने नेक आमीन, तौफीक आपे मुला बधानी कुल आमीन, मुश्किलियों बीमारी बला आफतो तकलीफों मूंझवणों गैर समझणो दूर करे मौला आमीन, धंधो रोजगार कमाणी में बरकत आपे कोईना कर्जवान के मोहताज न आमीन, राखे दीन अने दुनिया में आसूदा करे मौला दरेक ने जमा आमीन, खाना हाजरी में नियमित राखे
મોલા દરેકની દુઆ, દસો, શુક્રિયા ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે. મોલા દરેકના કુલ આમીન. ગુનાહ માફ કરે. મોલા દરેકને પોતાના ઝાહિરી બાતુની આમીન. નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. મોલા ઇલમ ઇજલસના આમીન. ભાઈ બહેનોમાં, જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં, આપસમાં, ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં, સંપ સલાહ, ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. મોલા આમીન. લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. મોલા કોઈને આમીન. પણ શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, આર્થિક રીતે, કોઈ પણ રીતે મોલા કોઈને પણ કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે. મોલા આમીન. આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ શાંતિ છે ત્યાં સુખ, શાંતિ, સલામતી ને આબાદી ફેલાવે. મોલા આપણા આમીન. દિલ, નૂર, ઈમાન, નમ્રતા, આનંદથી ભર્યા રાખે. મોલા ઇલ્મ આમીન. જ્ઞાનમાં વધારો કરે, હકીકતની સાચી સમજ આપે. આમીન. મોલા આમીન. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. મોલા આમીન. જન્મના અંદર જ આપણા દરેકને મોલા પોતાના નૂરમાં એક કરી દે. હાજરી તમામ આમીન. ઇલમ ઇજલસના ભાઈ બહેનોના, ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિના આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલુશૈની હાજરી માં મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહોની માફી બક્ષે. આમીન. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન. અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. આમીન. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. મૌલા અલી મદદ.